everyone. Hope all of you are good. I am sure that all my dear and loving students have started their studies and completed most of their work in FN book and English Junction book. First and second lesson we have completed, and same wise you also might have completed your books. Correct or not? अरे वाह, ना का तो कोई सवाल ही नहीं है. All my students are very studious, very good. So today I am going to teach you poem number 1 from your English Junction. The name of the poem is Flower on the Road. Which poem we are going to study today? Poem number 1, Flower on the Road. And who is the writer of the poem? Yes, the writer of the poem is Chitra Padmanabhan. Who is the writer of the poem? Chitra Padmanabhan. Now, what is this poem about? Let's take a quick look. In this poem, the bougainvillea flower. First, we will see here on the wall the bougainvillea flowers are blossom. Bougainvillea flowers blooming in spring bring happiness to all, whereas the little flower also feels happy that it brings happiness to the little child who is passing by. Through this poem, the poet wants to convey the message that we all are unique and has a special feature within ourselves. तो पहले हम एक बार पूरा पोयम रिसाइट कर लेते हैं, then we will understand the poem one by one. तो students, repeat after me. Spring has come, said the bougainvillea, crimson, orange, cream and yellow, making a flower wall along the road. I bring happiness to all. Wait, said the little flower, on the edge of the crib. I too blossom, though I am small. Every now and then, a little child walks past, sees me at her height, and happily smiles. Doesn't that make us comrades on the road? Yes, this is the poem. एक बार और हम रीड कर लेते हैं फुल पोयम. स्टूडेंट्स, मेरे साथ आपको भी रिसाइट करना है. स्प्रिंग हैज़ कम, सेड द बोगनविलिया, क्रिम्सन, ऑरेंज, क्रीम एंड येलो, मेकिंग अ फ्लावर वॉल along the road. I bring happiness to all. Wait, said the little flower, on the edge of the crib. I too blossom, though I am small. Every now and then, a little child walks past, sees me at her height, and happily smiles. Doesn't that make us comrades on the road? Yes. So this is the poem. Now, before starting the explanation, we will see the glossary of the poem for your better understanding. तो हम पहले ग्लॉसरी अच्छे से समझ लेते हैं. फर्स्ट वन, बोगनविलिया. तो अब हम ये सोचेंगे बोगनविलिया क्या है. तो बोगनविलिया इज़ द नेम ऑफ अ फ्लावर. उसे हम पेपर फ्लावर भी कहते हैं, कागज़ के फूल भी कह सकते हैं. आपने अपने घरों में रोड के साइड पे ये देखा ही होगा, पिंक कलर के फ्लावर होते हैं बोगनविलिया. वी कैन टेल देम पेपर फ्लावर या कागज़ के फूल भी कहा जाता है. क्रिम्सन मीन्स कलर है जो डार्क रेड कलर का होता है. इट इज़ क्रिम्सन मीन्स डार्क रेड. स्प्रिंग नेम ऑफ अ सीजन, बसंत कह सकते हैं. तो स्प्रिंग मीन्स नेम ऑफ द सीजन. एज मीन्स एक कॉर्नर, कोना. Edge means in the corner. Crib,
द एज ऑफ द फुटपाथ, फुटपाथ के कोने में, एक साइड में. तो क्रिब मीन्स द एज ऑफ द फुटपाथ. ब्लॉसम मीन्स खिलना, टू प्रोड्यूस फ्लावर्स. What is the meaning of blossom? Blossom means to produce flowers. Height means ऊंचाई, कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी ऊंचाई. Yes, height means ऊंचाई. And last one, comrades means friends, जो आपस में बहुत एक दूसरे से क्लोज है. बेस्ट फ्रेंड्स वी कैन टेल. तो जो आपस में रहते, आपस में काम करते हैं, दे आर कॉल्ड comrades. तो आपने मीनिंग समझ लिए होंगे. सो नाउ विल मूव ऑन फर्दर. लाइन वाइज हम पोएम्स समझते हैं. सबसे पहले है बोगनविलिया. सो दिस इज बोगनविलिया फ्लावर, जिसे हम पेपर फ्लावर या कागज के फूल भी कह सकते हैं. अब ये बोगनविलिया क्या कह रहा है, दैट वी विल सी. स्प्रिंग हैज कम, said the bougainvillea, crimson, orange and cream and yellow, making a flower wall along the road. I bring happiness to all. तो हम इतना पहले लाइन समझते हैं. Spring has come, said the bougainvillea. तो बोगनविलिया यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्प्रिंग का सीजन आ गया है. They are blooming of different colors. तो कौन कौन से कलर के बोगनविलिया उगे हैं? क्रिम्सन कलर, ऑरेंज, क्रीम एंड येलो. एंड मेकिंग अ फ्लावर वॉल अलोंग द रोड. और इतना अच्छा उन्होंने पूरे दीवार पे फ्लावर की वॉल बना दी है. आई ब्रिंग हैप्पीनेस टू ऑल. और जो भी लोग वहाँ से पास होते हैं और उस बोगनविलिया के फूल को पूरे दीवार पे लटकते हुए देखते हैं, वो सबको वो खुशी पहुंचाता है. समझ में आया? एक बार और कर लेते हैं. तो यह बोगनविलिया जो स्प्रिंग सीजन में उगता है और उसके फ्लावर खिलते हैं, और वो कौन कौन से कलर के फ्लावर है? डार्क रेड कलर के, ऑरेंज, क्रीम, येलो. और ये इतने अच्छे से खिले हुए हैं कि जो रोड के साइड पे दीवार खड़ी है, पूरे दीवार को उन्होंने भर दिया है फ्लावर से. और जो भी लोग वहाँ से पास ऑन होते हैं, वो इसे देख के बहुत खुश होते हैं. नाउ विल सी ऑन टू द नेक्स्ट 4 लाइन्स. देखो कितने अच्छे से बोगनविलिया फ्लावर उगे हुए हैं, और ये सभी लोगों को जो वहाँ से पास होते हैं उसके मन में खुशी पैदा करते हैं. दे आर फील वेरी हैप्पी बाय सीइंग दिस बोगनविलिया फ्लावर्स ग्रो ऑन द वॉल. नाउ सी द नेक्स्ट 4 lines. Wait, said the little flower on the edge of the crib. I too blossom, though I am small. तो यहाँ पे तभी एक छोटा सा फ्लावर जो फुटपाथ के साइड में उगा हुआ है, कह रहा है कि रुको रुको, थोड़ी देर ठहरो, मैं भी यहाँ पे उग रहा हूँ. तो what it is saying? Then a little flower which is blossom on a footpath, that is a crib, says to bougainvillea that wait, I too blossom and bring happiness though I am small. तो यहाँ पे वो छोटा सा फ्लावर, ये छोटा सा फ्लावर बोगनविलिया से कह रहा है कि रुको रुको, आप तो इतने खुश हो कि आप पूरे दीवार को आपने भर दिया है और लोग आपको देख के खुश होते हैं. मैं भले ही मेरी हाइट स्मॉल है, मैं एक रोड के साइड में कोने में उगा हुआ हूँ, बट मैं भी यहाँ पे खिला हुआ हूँ. तो मेरी हाइट भले स्मॉल है, बट मैं भी यहाँ पे खिला हुआ हूँ. नाउ विल सी द नेक्स्ट लाइन्स. उसमें पोएट क्या कहना चाहते हैं, दैट विल सी. एवरी नाउ एंड देन अ लिटिल चाइल्ड वॉक्स पास्ट. मतलब यहाँ पे जब भी कोई छोटा बच्चा आता है तो उसकी नज़र दीवार पे नहीं पड़ती, उसकी हाइट छोटी है. सीज मी एट हर हाइट, उस बच्चे की हाइट छोटी है तो उसकी नज़र सिर्फ डायरेक्ट मेरे ऊपर पड़ती है.
एंड हैप्पीली स्माइल्स, और खुश हो के, और वो खुशी से खिल जाता है, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। डजेंट दैट मेक्स अस कॉमरेड्स ऑन द रोड, तो इससे आपको नहीं लगता कि हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं? वी आर डूइंग द सेम जॉब, एंड व्हाट इज़ दैट जॉब? ऑफ मेकिंग द पीपल हैप्पी। वो जो बड़ा फूल बोगनविलिया का है जो दीवार पे खिला हुआ है, वो बड़े लोगों को, पासर्स बाय को हैप्पी करता है, और जो छोटा सा फूल जो रोड के साइड पे कोने में उगा हुआ है, वो छोटे बच्चे जो उसकी हाइट स्मॉल है उसे खुशी दिलाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटर। द लिटिल फ्लावर is saying to Bougainvillea, every child who is passing by sees me. The little flower feels happy, कि वो जब बच्चा कोई भी उसे देखता है, उसको देख के उसको खुशी आती है, तो उस फ्लावर को भी बहुत अच्छा फील होता है। So does it makes us friendly to both of them? तो क्या हम दोनों दोस्त नहीं हुए? हुए ना दोनों दोस्त? Yes or no students? Yes. तो can you tell me why the word comrades is used for Bougainvillea and the little flower? बताओ बच्चों। Yes. थोड़ा सोचिए। अरे वाह, सारे बच्चे रेडी हैं आंसर देने के लिए। Yes, the Bougainvillea and the little flower both are comrades as they bring happiness to the passers-by, and the little flower bring happiness to the little child. अब हम इस पोएम की पूरी समरी समझ लेते हैं इन इजी वर्ड्स। देखो, ये इस बच्चे की हाइट स्मॉल है, तो जब ये पास होता है उसकी हाइट के हिसाब से उसकी नज़र सीधा उस छोटे से फूल पे पड़ती है जो उसे खुशी देता है। तो दोनों, बोगनविलिया ऑल्सो एंड दैट स्मॉल फ्लावर ऑल्सो, दोनों एक ही काम कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगी में खुशी लाने का। So we'll try to understand the full poem in simple words. See, Bougainvillea are colorful bunches, whereas the little flower is single. Bougainvillea इतने सारे बंच फ्लावर होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे लदे होते हैं, बल्कि वो छोटा फ्लावर वो सिर्फ एक ही फ्लावर है। द बोगनविलिया इज प्लीजिंग साइट, देखने में उसका दृश्य कैसा है पीपल को? वो बहुत अच्छा लगता है टू द पीपल, बिकॉज इट हैंग्स फ्रॉम अ वॉल। वो कहाँ पे टंगा हुआ है? दीवार पे टंगा है, और दीवार को पूरा ढक दिया है, भर दिया है। बोगनविलिया हैंग्स हाई ऑन द गार्डन, पूरे गार्डन को अच्छे से उसने ढका हुआ है। वेयर एज द लिटिल फ्लावर इज बेयरली एज हाई एज द क्रीप, मगर वो छोटा सा फूल, वो उसकी हाइट तो एकदम कॉर्नर में रोड से एकदम छोटी सी है, छोटा सा फ्लावर है, मगर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। द लिटिल फ्लावर गिव्स सिमिलर प्लेजेंट टू द चाइल्ड, मगर खुशी देने में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। भले वो बोगनविलिया जो पूरे बंच के फ्लावर दीवार पे लदे हुए हों, और वो फूल भले वो एक ही है, बट बोथ आर सेम, बिकॉज वो लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं। टू द चाइल्ड हु कैन सी इट, बिकॉज द चाइल्ड एंड द फ्लावर आर ऑन द सेम लेवल, क्योंकि वो बच्चा और वो छोटा सा फ्लावर दोनों की हाइट सेम है, तो बोथ आर एट द सेम लेवल। द टाइनी फ्लावर पॉइंट्स आउट दैट बोथ गिव्स प्लेजर, यानी जो बोगनविलिया का फ्लावर है और जो छोटा सा फूल है, दोनों लोगों की ज़िंदगी में, और छोटा सा फूल उस बच्चे की ज़िंदगी में, जो भी बच्चे वहाँ से रोज़ पास ऑन होते हैं उनकी ज़िंदगी में प्लेजर, खुशियाँ लेके आता है। सो आर सिमिलर एंड नॉट कॉम्पिटिटर्स, वो दोनों एक जैसे ही है, वो एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, वो दोनों एक जैसे ही है। द लिटिल फ्लावर हैज़ ग्रेटर विजडम देन द क्लस्टर ऑफ बोगनविलिया, तो जो छोटा सा फूल है उसे हम ज़्यादा विनम्र कह सकते हैं, क्योंकि वो छोटे से जो मासूम बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आता है। तो इसलिए बोगनविलिया से हम कह सकते हैं कि छोटा सा फूल दैट इज़ बेटर, मगर हम किसी को यहाँ कम या ज़्यादा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। बोथ
bougainvillea as well as the small flower bring happiness to the people who are passing by. So both these flowers bring happiness in the life of the people.